गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हम लोगों ने हमारा चैप्टर 9 तो ख़त्म कर लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर PA2 लास्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 10. So we are going to do this chapter number 10, how animals survive. So we are going to study about how animals survive in the different atmosphere. What are the type of the animals, what do they eat, and how they can protect themselves from the adaptations. So this is what we are going to study in our chapter number 10, how animals survive. So without wasting our time, let's start this chapter, right? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मतलब कि कौन कौन से टाइप्स के एनिमल्स होते हैं एक्चुअल में। तो हम लोग उसे डिफाइन करते हैं और डिवाइड करते हैं, यू कैन से, इनटू एंड टू पार्ट्स विच आर द एनिमल्स विच आर हैविंग द बैकबोन एंड विच आर नॉट हैविंग द बैकबोन. Means if the animals are not having the backbone, then they will be known as an invertebrates, and they will include cockroaches, ants, worms, and slugs and snails. And most probably their body part will be divided into three parts. What will happen? That their body part will be divided into the three parts. They will most probably have 6 legs, and their body part will be divided into and three, as I said you. And the parts will be head, thorax, and abdomen, right? Which are the three parts? Yes, head, thorax and abdomen. Most probably insects का जो outer harder covering होता है, the hard outer covering, that is made up of which material? That is made up of chitin. वो चिटिन का बना हुआ होता है. Few of insects, अगर हम कुछ insects की बात करते हैं, then such as mosquitoes, butterflies, वो सब fly कर सकते हैं. Not each and every insect can fly, but yeah, some of them can. They can fly. Now we are going to study about the classification about the animals with the backbone. Means they are having the backbone. Animals that have a backbone are called vertebrates. हम उसे क्या कहते हैं? We call them as a vertebrates. They can be further divided into the smaller groups like fish. फिश जो होता है वो पानी में रहता है. वी नो दैट दिस ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, it is also very large. It stays or it lives in the water. These animals breathe through gills. वो किससे breathe करते हैं बेटा? They breathe through gills. They have fins to swim. Swim करने के लिए उनके पास fins होते हैं. Breathe करने के लिए उनके पास gills होते हैं. Their body is covered with scales. उनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है? With the scales. And अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ फिश का, then an example you can say the cod, markle and shark. These are the types of fish. Means the group which is mostly in the water area, जो फ्लाई करता है, सॉरी स्विम करता है फिन से, स्विम ब्रीथ करता है गिल से. एंड वी हैव लर्नड अबाउट द एग्जाम्पल्स कॉड एंड शार्क. Now comes the group which is the animals which live on both land and water. दोनों में रहता है. Like और वो ब्रीथ किससे करता है? अगर वो लैंड में रह रहा है then it will breathe with the lungs, and if it will stay in water then it will breathe with its moist skin. किससे ब्रीथ करेगा? अपनी moist skin से. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपने देखा हुआ हो then you can say any जो आपको लगता हो कि ये हो सकता है. यस, फ्रॉग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि फ्रॉग जो है वो आप सब ने देखा हुआ है कहीं ना कहीं, तो मतलब देखा ही होगा फ्रॉग को. तो फ्रॉग जो होता है वो पानी में भी रह सकता है, वो लैंड पे भी रह सकता है. वो जब लैंड पे होता है तो वो लंग से ब्रीथ करता है, जब वो पानी में होता है तब अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है. ठीक है. So after these two groups in the vertebrates, we are having the third group which is known as the reptiles. Means the animals which live mainly on land. जो मेजरली कहाँ पे रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ लैंड पर रहते हैं. और उनका कैसा होता है बॉडी? वो उसकी स्केली स्किन होती है, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग और बाय लेइंग एग्स. वो क्या करते हैं? एग्स को ले करते हैं. ठीक है. लिजार्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल, ये सब रेप्टाइल्स है. क्या है? दे आर
reptiles. Reptiles, amphibians and fish. Reptiles, amphibians और fish जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। वो कैसे एनिमल्स हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसका मतलब है कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता है विद द चेंज इन द टेम्परेचर इन द सराउंडिंग। अगर उनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग में लो हो रहा है तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मीन्स द चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर विल ऑल्सो चेंज विद द चेंज इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग के टेम्परेचर में भी चेंज आएगा जब उनके बॉडी में टेम्परेचर में चेंज आएगा। ठीक है, so they are known as an cold-blooded animals. Now comes the fourth group in vertebrates, which is birds. You have seen birds, am I right? Yes. Birds have a light body. उनकी बॉडी कैसी होती है? एकदम लाइट इन वेट। इसी वजह से तो वो फ्लाई कर सकते हैं, am I right? दे आर कवर्ड विथ फेदर्स। उनकी बॉडी जो होती है वो लाइट फेदर्स से होती है जो उन्हें हेल्प करते हैं फ्लाई करने के लिए। अगर मैं आपका बेस्ट एग्जांपल दूँ देन स्पैरो, ईगल, देर आर मैनी, पेंगुइन्स, कीवी, ऑस्ट्रिचेस, दे आर बर्ड्स बट हाउएवर दे कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव अ हैवी बॉडी। उनका बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होता है इसलिए वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द फ्लाइटलेस बर्ड्स। मतलब कि ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन आर दी बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है। दैट इज़ द रीज़न दैट दे आर नॉट एबल टू फ्लाई। सो दे आर नोन एज एन फ्लाइटलेस बर्ड्स। ऑल राइट, and you know, for it's just a fact for you that hummingbirds are the smallest bird in the world. So now when we talk about the last and the fifth group of our vertebrates, then that is the mammals, and which includes us also. Mammals, actually mammal is a group of animals that give birth to the babies. वो क्या करता है? बेबीज को बर्थ करता है। वी हैव स्टडीड दिस इन अवर 9th चैप्टर लास्ट टॉपिक दैट इट गिव बर्थ टू द यंग वंस। देयर बॉडी हैव लॉन्ग हेयर, नो सॉरी नॉट लॉन्ग, देयर बॉडी हैव हेयर्स। उनके बॉडी में हेयर होते हैं एंड द मदर्स suckle their young ones. Suckles means to allow to suck the milk. They ड्रिंक मदर्स मिल्क एंड मोस्ट प्रोबेबली मैमल्स जो होते हैं वो लंग से ब्रीथ करते हैं। उनके पास 4 लिम्स होती है और उन बर्ड्स और मैमल्स दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। मतलब कि उनके बॉडी का टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता जब उनके सराउंडिंग में चेंज होता है। मीन्स कि अगर विंटर हो रहे हैं, मतलब बाहर टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो गया, तो क्या आपके बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होगा? नो, इट वोंट हैपन बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। And here are some examples given to us. Human beings, elephants, horse, goat, cow, dog and cat are the examples of mammals. Alright. So next comes where animals live. एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? जैसे आप सब लोग अपने घर में रहते हो, एनिमल्स को भी कुछ ना कुछ चाहिए रहने के लिए। Where do they will stay? So animals को जब जहाँ भी देखिए they will find their places. लैंड पे रहते हैं, एयर पे रहते हैं, मीन्स फ्लाइंग इन द एयर, ट्रीज़ पे रह लेते हैं, पानी में रह लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों जगह पर रह लेते हैं, मीन्स ऑन द लैंड एंड द वाटर बोथ। सो मोस्ट प्रोबेबली वो जहाँ पर भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वी कॉल इट लाइक कि वो वहाँ पर रहते हैं। ओके, so then comes that we have classified it into the 5 groups again. First one is terrestrial animals, means the animals which live on the land, जो कि ज़मीन पर रहते हैं, हम उसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं। इस एनिमल्स के क्या फीचर्स होते हैं कि उनके पास लेग्स होते हैं ताकि वो वॉक कर सके लैंड में, और मोस्ट प्रोबेबली वो लोगों का ब्रीथिंग ऑर्गन क्या होता है? दे ब्रीथ थ्रू दी लंग्स। क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल सकती है जगह जगह की। जैसे कि अगर हम माउंटेन की बात करें या पोलर रीजन की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ठंडी होगी। अगर हम लोग डेजर्ट पे आ जाए, ओ बाप रे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। सो व्हाट विल हैपन कि जो जहाँ का है दे आर बस हैबिटेड टू लिव इन दैट सिचुएशन। सो याक, best example given to us, will always stay in the mountain. It won't come and stay in the desert
whereas the polar bear will always stay in the polar region because it has been habituated to stay in the ice. So it will stay over there only, it won't come into the mountain or else desert, or nor camel will go in the polar region, and camel has been found in the deserts. All right, so let us keep it till today, till here. We will study about the arboreal, aerial, aquatic and amphibian animals tomorrow. So that's all for today. If you have any doubt, please make yourself free to ask. Thank you everyone.